Hi everyone. For a change, I am going to start this session with a famous dialogue from a famous Hindi movie spoken by Sunny Deol. तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है जज साहब, बट इंसाफ नहीं मिल रहा है. If you haven't heard about this dialogue, go on to YouTube, search this dialogue Tariq Pe Tariq from the movie Damini. I'm sure you're going to enjoy this and you will be able to relate with this. Because the similar kind of thing is happening with RBI Grade B exam dates also. Dates बताई जा रही हैं, but exam नहीं हो रहा है. Speculations पे speculations हो रही हैं. So the exam which was last being speculated कि अभी 6 मई को होगा, obviously वो तो अभी नहीं पॉसिबल लग रहा है, बिकॉज अदरवाइज द नोटिफिकेशन शुड हैव बीन आउट बाय नाउ एंड द नेक्स्ट डेट नाउ व्हिच इज बीइंग स्पेकुलेटेड इज जून जुलाई. But in this video, let's not talk about what are the next dates and all that, because that is very uncertain. Rather focus on discussing something prudent, which is like how you can overcome your anxiety, how can you better utilize this time, because I think you are not realizing it now, but this time is a blessing for you, देखिए, the date is uncertain, that is for sure, the date is uncertain, but my question is, what about your potential? You will be only able to realize your potential only if you stop worrying about the uncertainty in the dates. तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे that how can you better utilize this time, how can we now you more ready for the exam. जो भी आपको टाइम मिल रहा है, आप उस ब्लेसिंग को कैसे अपनी फेवर में यूज कर सकते हो. ठीक है, तो छोटा सा वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा. एंड फॉर दिस आई एक्चुअली एनालाइज्ड, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं. वी डिस्कस विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स. सो आई कुड एक्चुअली कैटेगराइज स्टूडेंट्स इनटू 3 areas. One is those who have not started their preparation, NS means not started, and the second is who have started their preparation but not completed, NC means not completed, and the third one is who have started their preparation and completed. इन्होंने complete भी कर लिया, ऐसे भी कुछ लोग हैं. ठीक है, तो अभी इन तीनों लोगों के लिए I've just jot down some points के how can you utilize this time. तो जिन्होंने start कर लिए और 80-90% complete भी कर लिए, I think for them कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अभी भी एक वीक एरिया होगा. So you have to work on it, because ultimately 200 out of 300 marks in phase 2 is descriptive writing. तो आप इस पे जितना ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा इसको बेटर बनाएंगे, it will increase your probability to crack RBI Grade B exam. तो इस पे जरूर काम कीजिए. साथ में करंट अफेयर्स जो भी न्यू आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज जितने आपने पुराने करंट अफेयर्स पढ़ रखे होंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दे आर नॉट गोइंग टू बी नाउ दैट मच रेलेवेंट, बिकॉज एग्जाम इज गेटिंग पुश्ड फर्दर एंड फर्दर. तो ये एक डिसएडवांटेज है जल्दी तैयारी शुरू करने का, बट यू हैव टू लिव विद इट. तो करंट अफेयर्स अभी आप न्यू करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको करने ही रहेंगे. एंड द थर्ड वन इज कीप प्रैक्टिसिंग Q&R, क्वांट एंड रीजनिंग. I've seen many people who are done with quant and reasoning and they are like, sir अभी हम पेपर की पास जाके ही इसको देखेंगे दोबारा. बट देखिए, quant and reasoning I think is one such subject which is about momentum. नहीं करेंगे तो दिमाग में वो जंग लग जाती है and then you are not able to solve questions within a time limit. तो to keep that momentum, quant reasoning को थोड़ा थोड़ा करते रहिए, मे बी जस्ट 5 questions a day, but have that momentum with you. तो ये इनके लिए है जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है. बाकी whatever your weak areas are, you should keep working on that. Then for people who have started but not completed, say 40-50%, 30% प्रिपरेशन हो चुकी है, so इनको भी मेनली आई थिंक राइट नाउ जो फोकस करना है वो फेज 1 पे करना है. क्वांट एंड रीजनिंग के देखिए सेलेक्टेड टॉपिक्स कीजिए. डू नॉट किल योर टाइम बाय डूइंग एवरीथिंग, एंड यू कैन नॉट मास्टर एवरीथिंग इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एंड दैट इज नॉट नीडेड. Because ultimately in 25 minutes in quant you cannot solve 30 questions. So why to prepare for 20 topics? Rather prepare for 10 topics, prepare them well, और उस 25 मिनट में 10 क्वेश्चन करिए, आपकी कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगी. So do selected topics. In quant I would say definitely go for number series and quadratic equations. और reasoning में I would suggest don't go for puzzles and sitting arrangements. Though their weightage is high, but कहीं ना कहीं again it is very अनलाइकली कि आप इनको पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट्स को शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मास्टर कर लें. तो यहां पे आप थोड़ा सिलेक्टेड टॉपिक्स पे फोकस करिए. बाकी
करंट अफेयर्स आपको भी नए पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज जो आपने अगर दिसंबर और जनवरी के पढ़े दे वुड नॉट बी दैट रेलेवेंट. जनवरी के फिर भी रेलेवेंट रहेंगे, बट दिसंबर वुड नॉट बी दैट रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट इफ द एग्जाम इज टू बी हेल्ड इन जून, जुलाई और व्हाटएवर. ठीक है. और साथ में आपको थोड़ा फेज 2 का पढ़ना पड़ेगा. उसमें यू हैव टू फोकस ऑन मैनेजमेंट. आई थिंक ये तो आपको कर ही लेना चाहिए, मैनेजमेंट वाला पार्ट. राइट, आई एम जस्ट राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म्स टू मेक इट क्विक फॉर यू, बिकॉज यू कैनॉट लीव एवरीथिंग टू बी डन आफ्टर फेज 1. तो मैनेजमेंट कर लीजिए और साथ में आंसर राइटिंग कर लीजिए. अल्टीमेटली आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू कैन बिल्ड अपॉन योर आंसर राइटिंग राइट नाउ, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग बूस्ट फॉर यू टू क्रैक गुड मार्क्स इन फेज 2. तो इस पे जरूर कीजिए. भले ही फाइनेंस CSI नहीं हो पा रहा, बट आंसर राइटिंग मैनेजमेंट की कर लीजिए, सो दैट यू गेट टू नो द ओवरऑल फ्रेमवर्क एज इन हाउ यू कैन प्रेजेंट गुड आंसर्स. वो एक लिखने से ही स्किल बनेगी आपकी. और जो लोग, हाँ, और यहाँ पे अगर आपका क्वांट रीजनिंग, करंट अफेयर्स सारा हो जाता है, ठीक है, और मैनेजमेंट और आंसर राइटिंग पे भी आपने काफी काम कर लिया, देन यू कैन मूव ऑन टू फाइनेंस ऑल्सो, बिकॉज द मोर यू डू बिफोर फेज 1 द बेटर इट इज फॉर यू. नाउ जो लोग जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, आई थिंक उनके लिए एक बिग क्वेश्चन मार्क है. शुड दे एम 2024 और 2023? आई थिंक नोबडी कैन आंसर दिस फॉर यू. यू आर द बेस्ट जज. मुश्किल बहुत है, बट आई थिंक दैट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी, योर एंथुसियाज्म टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. आई हैव सीन पीपल क्लियरिंग दिस एग्जाम विद इन 2 months ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो, बट उनका थोड़ा बैकग्राउंड होता है, या तो यूपीएससी वाला रहेगा, या क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में बहुत उन्होंने पहले पढ़ा होगा और अभी सिर्फ करंट अफेयर्स या फेज 2 की प्रिपरेशन करनी होगी. सो अगर आप बिल्कुल ही स्क्रैच से शुरू करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू स्टडी क्वांट एंड रीजनिंग एंड यू हैव नेवर डन आंसर राइटिंग, यू हैव नेवर डन finance or economics, then I think it's bit tough for you, so you have to take that call. ठीक है, but I would take it from another angle. अगर आप 2024 भी एम कर रहे हैं, I would say that at least prepare for phase 1 in 2023. देखिए प्रिपेयर करके कि क्या आपने प्रिपेयर किया, एग्जाम में क्या आया, क्या आपने गलतियां की, बिकॉज द लर्निंग दैट यू कैन टेक आउट ऑफ 2023 एग्जाम और 2024 एग्जाम, वो आपको जितना भी पढ़ लें, जितने भी मेंटर्स से बात कर लें, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आपके एक्सपीरियंस से मिलेगी. तो यहाँ पे आप क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स पे फोकस कर सकते हैं एंड टेक 2023 एज एन जस्ट अ प्रैक्टिस टेस्ट, बिकॉज यू डोंट नीड 15 months टू प्रिपेयर फॉर 2024 के अभी शुरू करना है, बिकॉज ये भी आप जब करेंगे 2023 का भी टारगेट करेंगे, यू विल बी लर्निंग लॉट फॉर 2024. तो ये जिन्होंने स्टार्ट नहीं किए वो लोग कर सकते हैं. और बाकी मैं यही कहूंगा जो मैं बार बार कह रहा हूं, इट्स अ ब्लेसिंग, यू आर नॉट रियलाइजिंग इट नाउ. जब नोटिफिकेशन आएगा तब यू विल रियलाइज कि यार टाइम ये कितना अच्छा था, कोई प्रेशर नहीं था डेट का. आई कुड हैव यूटिलाइज्ड दिस टाइम मच बेटर. एंड यू कैन एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट ओनली इफ यू कैन डांस अपॉन द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ. ये हमेशा याद रखना. इससे जो भी एंग्जाइटी हो रही है, जो भी प्रेशर बन रहा है, उसको चैनलाइज करो एक पॉजिटिव एनर्जी में और अपना बेस्ट दो. योर ओनली गोल, योर ओनली फोकस शुड बी टू क्लियर दैट एग्जाम विच कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर. आपके अगले 30 साल बदल सकते हैं अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लें. मतलब मैं क्या ही बोलूं यार, लाइफ इज सेटल्ड फॉर लाइफ. ठीक है, अनसर्टन तो कुछ नहीं है, सर्टन तो कुछ नहीं है, सिर्फ डेथ ही अनसर्टन है मुझसे. तो आप अनसर्टनिटी से मत डरिए और अपना बेस्ट दीजिए. डेट्स आती जाती रहेंगी, एग्जाम भी आते जाते रहेंगे, होते रहेंगे. The idea is not to worry about dates. The idea is not to worry about कि मैं 2023 में RBI ग्रेड बी ऑफिसर बनूंगा या नहीं. Whatever you read, read with quality, read with intent. Your focus should be to become RBI grade B manager. That's it. Thank you guys. I hope you got your message. फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, you need our help, you can always email us at our email ID hello@edutab.co.in. We would be more than happy to help you out. चलिए, have a nice day. Best of luck. जय हिंद.